जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दुनियाમાં સર્વે જીવને સુખ ને શાંતિ હોવું રે। દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખ ને શાંતિ હોવું રે। दुनियाમાં સર્વે જીવને સુખ ને શાંતિ હોવું રે। दुनियाમાં સર્વે જીવને સુખ ને શાંતિ હોવું રે। મનથી પણ કોઈ જીવન વિચારે ના હોવું રે। મનથી પણ સામાન્ય ઉપકારક બુદ્ધિ અહિંસક ચિત્ત મન હોજો રે। સામાન્ય ઉપકારક બુદ્ધિ અહિંસક ચિત્ત મન હોજો રે। दुनियाમાં સર્વે જીવને સુખ ને શાંતિ હોજો રે। दुनियाમાં સર્વે જીવને સુખ ને શાંતિ હોજો રે। પાતી શીતલ મધુરે બેરાલે રે। માનીતી શીતલ મધુરે બેલાડે તે મોટો રે। લોકોને સુખ આપે કાયા તેજ જોશો રે। લોકોને સુખ આપે તેવા કાયા તેજ જોશો રે। दुनियाમાં સર્વે જીવને સુખ ને શાંતિ હોજો રે। दुनियाમાં સર્વે જીવને સુખ ને શાંતિ હોજો રે। લક્ષ્મી ગમતે દિયદંદામાં બેલવરારું પુણ્યો રે। લક્ષ્મી ગમે તે ગંધા મેલવનારો પુણ્યો રે। પુણ્યો પાંજક સત્સંગ માર્ગે કર છે ધન્ય લોજો। પુણ્યો પાંજક સત્સંગ માર્ગે કર છે ધન્ય લોજો રે। दुनियाમાં સર્વે સુખ दुनियाમાં સર્વે જીવને સુખ ને શાંતિ હોજો રે। दुनियाમાં સર્વે જીવને સુખ ને શાંતિ હોજો રે। જાતે વિજ્ઞાન સ્વરૂપ છું પ્રયોગ જો તો હોજો રે। જાતે વિજ્ઞાન સ્વરૂપ છું પ્રયોગ જો તો હોજો રે। માનવ કાયા સિદ્ધ મંદિર છે આત્મા અંદર હોજો રે। માનવ કાયા સિદ્ધ મંદિર છે આત્મા અંદર નો રે। दुनियाમાં સર્વે જીવને સુખ ને શાંતિ હોજો રે। दुनियाમાં સર્વે જીવને
सुख ने शांति हुजूरी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद संतोष काका, अनम्यूट करो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, त्रिमंत्र बुलाए प्लीज। ओ एक नमो मिनट, वित्रागाय। एक मिनट। 9 कलमों जल क्विकली मोनिका। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ દે તારી જીવાત્માનું કિંચિત માત્ર પણ અહમ ના દુબાય કે દુબા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનું કિંચિત માત્ર પણ અહમ ના દુબે એવી સ્યાદવાદ વાણી, સ્યાદવાદ વર્તન અને સ્યાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી મને કોઈ પણ ધર્મ હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ના દુબાય કે દુબા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુબે એવી સાદવાદ વાણી, સાદવાદ વર્તન અને ઈશાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી ઉપદેશક, સાધુ, સાધ્વી કે આચાર્યનો અવનવાદ, અપરાધ, અવિનય ના કરને की परम शक्ति આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો સાથે ક્યારે પણ અભાવ તિરસ્કાર ક્યારે પણ ના કરાય, ના કરાવાય કે કરતા કે પ્રતિ ના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માની સાથે ક્યારે પણ કઠોર ભાષા, તંતીલી ભાષા ના બોલી જાય, ના બોલવાઈ જાય કે બોલવાના પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. કોઈ કઠોર ભાષા, તંતીલી ભાષા બોલે તો મને મધુર ભાષા બોલવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો સ્ત્રી પુરુષ અગરના પુરુષક ગમે તે લિંગધારી હોય તો તેના સંબંધમાં કિંચિત માત્ર પણ વિષય વિકાર સંબંધી દોષો, ઈચ્છાઓ, ચેષ્ટાઓ या विचार संबंधी दोषों ना किया जाए, ना करवाया जाए કે કરતા કે પ્રતિ ના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને નિરંતર નિર્વિકાર રહેવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ રસમાં લુબ્ધપણું ના કરાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને સમરસથી ખોરાક લેવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો સાથે પ્રત્યક્ષ અથવા પરોક્ષ, જીવંત અથવા મૃત્યુ પામીના લોક કોઈનો પણ કિંચિત માત્ર પણ અહમ ના દુબે, અવનવાદ, अपराध, अविनय ना करने की परम शक्ति આપો. હે દાદા ભગવાન, મને જગત કલ્યાણ કરવાનું નિમિત્ત બનવાની પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद। ओके संतोष काका, त्रिमंत्र प्लीज। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो वित्रागाय। नमो वित्रागाय। नमो अर्यंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वज्जायाणम। नमो वत्सायाणम। नमो लोय सौव साहुणम। नमो लोय सव साहुणम। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंचन मुक्कारो। सौव पावकपणासणो। सव पावकपणासनो। मंगलाणं च संवेशीं। मंगलानां च सवेसे। परमं हवै मंगलम्। परमं हवे मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ए पर आपको कि प्रेयर आए आता है? ओके मोनिका। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे लय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी साबत से और कुसम से हमेशा दूर रहूंगी। और कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काय का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मॉरल, सिंसियर, प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व की मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपनी माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ। मैं उनको अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। वैसे तो ए पर दिव्या दाक्ष ये प्रेयर होती है तो आंख बंद करने का और सुनने का। ओके स्टडी प्रेयर की आता है पर ओके हिताक्षी बा। हाँ जय सचिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दिव्या दृढ़ निश्चय दाक्ष करती हूँ। पर आंख बंद करो। आप ऐसा कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन मुक्तों के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे। जय सच्चिदानंद। थैंक यू दिव्या। हाँ। हे दादा हे दादा भगवान, हे हे दादा दादा भगवान, भगवान हमने आपके बच्चे हैं। हम हम हैं आपके ये हैं आपके आपके बच्चे बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के दिल है के दिल हैं सच्चे, के सच्चे सच्चे, पैर भी है कच्चे, फिर भी फिर है भी कच्चे, है कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम काम करेंगे काम करेंगे अच्छे। करेंगे अच्छे अच्छे। अच्छे अच्छे। दाक्ष अनम्यूट करो। ओके हिताक्षी बा। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप रियल हो, लक्ष्य रिलेटिव है। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप परमानेंट हो, लक्ष्य टेम्पररी है। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप हिताक्षी बा है रियल रिलेटिव है। क्यों कैसा होता है? ओके हिताक्षी बा। हाँ जय सच्चिदानंद। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, તમે જુદા છો, હિતાક્ષી જુદા છે। हे શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, હિતાક્ષી ટેમ્પરરી છે। हे શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમનન્ટ છો, હિતાક્ષી ટેમ્પરરી છે। જય સચ્ચિદાનંદ। Right दिव्या okay दिव्या Ben are you happy? हाँ, Ken क्योंकि આજે છે ને વલ્લી વલ્લી ઉઠી। very good and आज नन्हे वावा केम પહેરી છે? નાલા નવા નવા કપડા કેમ પહેર્યા છે? આ નવા નથી, આ જૂના જ છે। આ તો જૂના પણ આજે કે અમને તો નવા લાગે છે। તમને પસંદ છે? हाँ, Okay, quickly everybody. Hitakshi, are you happy? You don't look happy.
साक्षी आपके दादा आपकी आवाज स्लो आ रही है। अभी हमें दो दो कंप्यूटर में हूँ तो भी हाँ दादा, आपकी हल्की हल्की सी आवाज स्लो आ रही है। ओके हिताक्षी माँ बोलो। आज जय सच्चिदानंद। आज मैं हैप्पी हूँ क्योंकि आज मैंने 5 सूर्य नमस्कार किए थे, सारे संसाधन किए थे और पढ़े में मेरी सारी बुक्स कंप्लीट थी और मैथ्स में जो भी हमको प्रिंट पेपर सबने समझे थे वो सारे मेरे राइट हुए थे, ओके वेरी गुड। इसलिए मैं करिश्मा खुश हूँ आज। आप हैप्पी नहीं लगती है, दादा नहीं आती। क्यों? दादा वो एग्जाम के मार्क्स अच्छे आए इसलिए। और दीदी के साथ झगड़ा हुआ था आज? नहीं दीदी के साथ झगड़ा हुआ था आज? नहीं। ओह वेरी गुड। मोनिका हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैं अनहैप्पी हूँ क्योंकि मैंने आज पापा के साथ एडजस्टमेंट नहीं लिया था और खाने के समय मुझे अभाव भी हो गया था। पर जय श्री राम। आप मैं ऐसी हूँ क्यों? आपने प्रेयर तो नहीं किया? क्योंकि सब प्रेयर आती है? हाँ संतोष काका ऐसे बोलता है कि सप्रेस आपको होमवर्क होमवर्क नहीं किया है तो हाउ कैन यू बी हैप्पी? संतोष काका अनहैप्पी है और टीचर अनहैप्पी होता है ना। आपने बताया था ना आज आपको आज सब करेगा। आपके पास है ना, मम्मी के पास है ना, यस तो आप क्यों नहीं करते? आपको टाइम नहीं मिलता है? नहीं मिलता है? आप टाइम वेस्ट करते हैं? नो टाइम वेस्ट नहीं करते? हाँ अभी जन्माष्टमी सेलिब्रेशन है ना, इसलिए नाटक है ना, तो टाइम नहीं मिल रहा है। तो जन्माष्टमी के और टाइम नहीं मिलता है? हैं? सुबह उठ के स्कूल जाके आके वापस टाइम नहीं मिलता है? होमवर्क करके बाद ओके ओके। आज टॉपिक था और किसको प्रेयर किसको आती है? पापा के लिए एडजस्टमेंट का होने का। वो मम्मी का ही पता है। हाँ तो मम्मी का चेंज करने का पापा। हाँ, ठीक है। जय सच्चिदानंद। हे वात्सल्य मूर्ति दादा भगवान, हमें जगतना सर्व जीवोनी સાથે એડજસ્ટમેન્ટ થઈએ, એડજસ્ટ એવરીવેર થઈએ, તેમજ કરની અંદર મારા પપ્પા રે સાથે હું જીવનભર એડજસ્ટ થઈ રહું એવી આપ મને શક્તિ और समझ આપો। जय सच्चिदानंद। इधर से आपको आता है ये हाँ प्रेयर आवड़े छे? नहीं ओके बच्चे लोग दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सुबह और शाम को ये दिस प्रेयर यू मस्ट मेक इट। ओके यू मस्ट रिसाइट इट। ओके मनिका विल स्टार्ट। क्या हो गया आपको? आज टॉपिक है पापा के एडजस्टमेंट। क्या हुआ था बोलो जल्दी जल्दी। पापा, मेरी फील्ड ट्रिप के दौरान पापा बाहर जा रहे हैं, तो मुझे स्कूल कौन छोड़ेगा, इसलिए मैंने चिक चिक की उनके साथ। पापा ने कहा एक दिन एडजस्ट कर लो, मैं एडजस्ट नहीं कर रही थी तो इसलिए। ओके करिश्मा आपने पापा के साथ एडजस्ट किया है? हाँ कैसे? पिताक्षी बात
मुझे जल्दी जल्दी जय सच्चिदानंद, आज तो पापा के साथ एडजस्ट थी ना, क्या हुआ? हाँ, एडजस्ट कैसे? क्योंकि आज पापा के साथ एक भी बार खींच नहीं हुई थी। कितनी दफा पापा के साथ बातें हुई, इंटरेक्शन? हाँ, दिन में कितनी दफा एडजस्टमेंट हुआ, पापा के साथ इंटरेक्शन हुआ? दिन में स्कूल में से आने के बाद पापा के साथ थोड़ी बातें की थी, बस फिर कुछ नहीं बात हुई थी। ओके, एक दो दफा। दक्ष, छोटी दीदी के साथ क्या हुआ? ओके, दिव्या बेन, पप्पा પપ્પાએ કહ્યું હતું તમને વહેલા આવવાનું તો આવી ગયા, તો વેરી ગુડ. હા, ગુડ ગુડ, વેરી ગુડ. पर पप्पा के साथ आज कितनी दफा बातें की? एक पर बात एक ओके, तो क्या इसको कितना किया पप्पा के साथ? नहीं। नहीं. ए दक्ष, छोटी आज मैं दीदी के साथ एडजस्ट हो गया था। दीदी ने मुझे एक बार चॉकलेट लाने का बोला था, तो दादा जब मैं मम्मी के पास गया तो दादा मम्मी ने मना कर दिया था। तो फिर दीदी बोलती थी लेके आ, फिर मैंने ये बोल दिया था कि मम्मी ने मुझे मना कर दिया है। तो दादा आज मैं एडजस्ट वहां पे हुआ कि नहीं हुआ ये मुझे आज समझ में नहीं आ रहा है। ओके, संतोष काका. मम्मी ने मना किया था हाँ दादा। और दीदी ने लाके दिया। नहीं दादा, दीदी को चाहिए थी तो दीदी ने बोला हाँ। था मेरे लेके आ, तो दादा मैंने बोल दिया था हाँ मैं लेके आता हूँ मम्मी के पास। फिर दादा जब मैं मम्मी के पास गया तो दादा मम्मी ने मना कर, फिर मैंने आके दीदी को मना करा तो दीदी ने बोला मेरे लिए लेके आ तू। हम्म। तो आप मम्मी ने मना किया तो नहीं लाए ना फिर आप? नहीं लाए दादा। हाँ, तो बस मम्मी का सुनने का। तो एडजस्ट हो गया भाई, परफेक्टली एडजस्ट हुआ, राइट संतोष काका? हाँ। ओके, હવે બોલો બીજા. आपने सुना दूसरे को, संतोष काका? हम्म। बातें करो पप्पा एडजस्टमेंट. पापा के साथ एडजस्टमेंट का चालू है टॉपिक। हाँ, यार मम्मी का खत्म हो गया. मम्मी का खत्म हो गया। यार दोनों को साथ नहीं चलेगा, बारी बारी ही चलेगा। वो तो बाद में वो. बाद में। ओके ओके। पापा आप लोगों के लिए क्या क्या करते हैं? करते हैं। बहुत क्या कुछ। क्या करते हैं? बहुत कुछ में क्या, लेकिन नोट किया है कभी? हाँ, हम्म, जो भी है। हम्म। हाँ, एक बार नोट किया था जब पिछले बार एक बार सत्संग में बोलने का था ना तब। हम्म। तो क्या क्या करते हैं? तो वन बाय वन बहुत करते हैं वो तो बराबर है, लेकिन स्पेसिफाइज वन टॉपिक वाइज कुछ बताओ। नोटिंग 1 2 3 करके। ओके, एक हितेश साहब आप बोलो जल्दी. मोनिका. हाँ, पापा मेरी जो भी मांग उस समय मुझे चाहिए तो वो पूरा करने में बहुत कोशिश करते हैं और वो पूरा भी कर लेते हैं। कभी पर कभी रहता है। पर नहीं, स्पेसिफाइज करो ना। अगर मुझे खाने आपको में कुछ चीज आपको चाहिए। आपको बुक चाहिए तो वो लाके देते हैं। फिर आपको कहीं बाहर जाना है तो फिर आपको उसका एडजस्टमेंट करके देते हैं, ऐसे कुछ। हाँ, अगर मुझे अभी
कुछ खाना है चटपटा तो पापा मुझे लाकर देते हैं, और अगर मुझे स्टेशनरी और स्टडीज के लिए कुछ चाहिए तो वो भी लाकर देते हैं। अगर मेरी साइकिल भी कुछ रिपेयर हो गई तो वही जाकर सही करते हैं। और स्टडीज के मामले में वही हमेशा मेरे लिए सपोर्टिव रहते हैं और एंकरेज भी बहुत करते हैं। Okay, Monica, और now अभी पर તને નથી સંભળાતું? સંભળાય છે ને? હા તો બોલો જલ્દી જલ્દી. પપ્પા શું કરે તમારા માટે? આપણે કઈ વસ્તુ જોતી હોય ને તો મમ્મી ના પાડી દે, પણ પપ્પા એનું એડજસ્ટમેન્ટ કરીને આપે. એક્ઝામ્પલ સાથે કઈ વસ્તુ એવી રીતે નહીં, કોઈ પણ વસ્તુ કઈક સ્પેસિફાઈઝ કરો. મમ્મી શું ના પાડે? તારે સ્ટેશનરી ક્રિકેટ રમવા માટે બોલ બેટ જોઈતો હોય ને મમ્મી ના પાડતો હોય ને પપ્પા લાવી આપે, કઈક સ્પેસિફાઈઝ એમ. બોલો. તારે કપડા જોઈતા હોય મમ્મી ના પાડે પપ્પા લાવી આપે, કઈ પણ એવી રીતે. ઓકે, યાદ કરો સ્પોર્ટ્સ દિવ્યાબેન, પપ્પા શું તમને લાવી સ્પોર્ટ્સ આપે? સ્પોર્ટ્સમેન દિવ્યા, હા બોલો બોલો. કે છે ને પપ્પા તમારી માટે શું કરે છે? પપ્પા મારે છે ને નાની કરવા માટે છે ને વાલબંધી આપે છે અને છે ને પપ્પા મારે એ ફરવા લઈ જાય છે. હિતાક્ષીબા, પપ્પા મને રમાડે છે. ઓકે ઓકે દિવ્યાબેન, બધાનો ટર્ન છે. હિતાક્ષીબા. हाँ सही सचिदानंद, मुझे पापा ऐसे संगीत में छोड़ने के जाते लेने आते हैं, फिर उनकी फीस भरते, संगीत की फीस भरते हैं। फिर अगर मुझे कोई भी चीज चाहिए, स्टेशनरी चाहिए, कुछ भी बाहर का खाना मुझे ओके बस ओके चाहिए। ओके पर जय सचिन। तो मैं कराटे में जाता हूँ ना, तो मुझे किट लेनी थी, तो मम्मी ने मना कर दिया, मगर पापा ने हाँ बोल दिया। ओके, હવે બોલો સંતોષ કાકા. तो आप ये नोटिंग करोगे ना कि पप्पा आपके लिए क्या क्या करते हैं, तो फिर एडजस्टमेंट उनके साथ होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी. जब तक कोई अपने लिए क्या करता है वो उसका वो हमको दिखाई नहीं देता, तब तक हम उसके साथ एडजस्टमेंट नहीं हो सकते. तो हमें ये पता चला ना कि पापा हमारे लिए ये इतना इतना करता है, तो उनके सामने तो उनके साथ हमें एडजस्ट होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी. छोटी सी बात होती है हमारे लिए, फिर एकदम से एडजस्ट हो सकते हैं. फिर अपना अपना जो ओपिनियन है, अपना जो बात है ना, वो आराम से हम छोड़ सकते हैं, उसमें कभी दिक्कत नहीं आती है. लेकिन पापा हमारे लिए क्या क्या करते वो नहीं समझ में आता, वो नोटिंग नहीं करते, वो हमें दिखाई नहीं देता, तो हम एडजस्ट नहीं हो सकते उनके साथ, कभी भी नहीं हो सकते. और ये अगर नोटिंग करेंगे, हम देखेंगे कि देखो हमारे लिए पापा ने क्या क्या किया, तो फिर उसके साथ एडजस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और उनकी हर एक बात मानने में भी कभी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमें समझ में आएगा कि हमारे लिए वो क्या क्या करते हैं. तो उनके उनके साथ हमारी एक बात छोड़ने के लिए हमारा एक एक क्या बोलते हैं, हटने શું કહેવાય? હટને શું કહેવાય? जिद 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 हाँ हाँ तो hurt वो hurt. हम हाँ Yes. Rigid if you become adamant. तो वो हाँ वो हम छोड़ सकते हैं उनको उनको देख के. तो हमारी काफी वीकनेस वैसे ऐसे ही निकल जाएगी हमारे अंदर से.
और उनको देखेंगे पूरा दिन वो कैसे वर्क करते हैं, तो उनको देख के हमको भी ऐसा काम करने, ऐसी हमारे काम करने की हमारे में शक्ति खड़ी हो जाएगी। वो पूरा दिन कैसे निकलता है उनका, सुबह से जाते हैं, शाम को सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, तो पूरा दिन कैसा काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, बिजनेस करते हैं, सब अलग अलग करते हैं सबके पापा। तो पूरा दिन वो काम करते हैं ना, तो उनको देख के हमारे में भी शक्ति आती है कि उनके जैसा हम हार्ड वर्क कर सके, है ना दिव्या बेन? हाँ। पापा बहुत हार्ड वर्क करते हैं ना, हाँ। और फिर सत्संग में भी रेगुलर आते हैं ना, हाँ। और सत्संग में भी रेगुलर आपको लेके आते हैं ना। हाँ। आपको नहीं आना होता है फिर भी लेके आते हैं ना। हाँ। क्यों ऐसा करते हैं, कभी पूछा नहीं आपने? कुछ हाँ, आ ही जाते हो, डैडी बोलते हैं तो आप आ ही जाते हो ना, कि मना करते हो कभी कभी, कि कभी कभी मना करते हो? मैंने नहीं करती है। मना नहीं करती है, अच्छा है, तो बहुत अच्छा है। पापा की हर एक बात सुनने का, हर एक बात मानने का। हाँ, पापा हमसे हमसे अच्छे है ना, हाँ। हमसे बड़े है ना, हाँ। हमसे ज्यादा समझदार है ना, हाँ। वो जिद नहीं करते ना कभी, हाँ। है ना? जिद कौन करता है? दिव्या जिद करती है? ना। नहीं, रूठ नहीं जाती दिव्या कभी कभी? अच्छा बात है, तो बहुत बढ़िया बात है। हाँ, पापा की हर एक बात सुनने का, हर एक बात मानने का। पापा को देखोगे ना तो आपके अंदर शक्ति आ जाएगी, काम करने की, पढ़ाई करने की, सब शक्ति आ जाएगी। हम्म। तो कल आपको क्या इम्प्रूव एडजस्ट इधर नहीं लेते और ये भी एडजस्ट लेने का है? मोनिका, आपने तो बताया तो आपने एडजस्ट नहीं लिया। मोनिका નથી સંભળાતું સંતોષ? બહુ સ્લો સંભળાય એટલે મેં બ્લૂટૂથ નાખ્યું. I don't know what's the problem. अरे हरदी दादा, ब्लूटूथ आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। अभी अभी आती है? मेरे को तो बराबर आती है क्योंकि ब्लूटूथ में सुना ही देता है, इसलिए. साक्षीबा, नहीं, ऐसे स्लो आ रही है। माइक 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 अभी ओके एनीवे, संतोष काका विल ट्रांसलेट। संतोष काका, उन लोग को किधर रिसर्च करते हैं और इम्प्रूव करने का वो पूछिए उन लोग। हम्म. आप कहाँ कहाँ पे एडजस्ट नहीं होते हो? मोनिका, मैं पापा के साथ ही तो। तो पापा की हाँ। बात होती है ना। हाँ, पापा के साथ अगर मैं कुछ मांग करती हूँ और वो पूरा नहीं होता है, तब मैं एडजस्ट बिल्कुल नहीं होती हूँ और वहाँ मैं बहुत जिद्दी हो जाती हूँ। मैं उनका तो ऐसा सिचुएशन बिल्कुल समझती नहीं। नहीं, आप कौन सी चीज मांगते हो और को वो मना करते हैं? मैं खाने की चीज बहुत मांगती हूँ। खाने की चीज, और खाने की चीज में क्या मांगते हो आप? पानी पूरी। पानी पूरी, अच्छा, फिर बस एक ही चीज? नहीं, पानी पूरी और आ, पाव भाजी और आ, चाट आइटम, चटपटी जो चीजें हैं वो मांग करती हूँ। चटपटी चीजें मांगते हो? तो डेली हाँ, मांगते हो कि कभी कभी हफ्ते में एक दो बार मांगते हो? वीकली वंस, फ्राइडे फ्राइडे मांगती हूँ।
फ्राइडे फ्राइडे ही मांगते हो तो हफ्ते में एक बार तो चलता है ना। हाँ चलता है, तो फिर क्यों मना करते हैं वो पापा? बट कुछ दिन उन्हें काम होता है तो वो लाकर दे नहीं पाते इसलिए। तो आप खुद जाके नहीं ले आ सकते? दुकान दूर है दादा इसलिए। दुकान दूर है तो वॉकिंग की वॉकिंग हो जाएगा, साइकिलिंग की साइकिलिंग हो जाएगी। हाँ बट रास्ता इतना पता नहीं इसलिए। अच्छा, लेकिन लेकिन कभी कभी वो मना करते हैं ना, तो हमें उनका व्यू पॉइंट भी देखना चाहिए, हमें समझना चाहिए। हमको इच्छा होती है खाने की, और हमने बताया वो गलत नहीं है, इच्छा हुई हमने बताया वो बात बराबर है, लेकिन वो मना करते तो उनका व्यू पॉइंट समझने का है हमें, कि उन्होंने क्यों मना किया वो समझना है हमें। वो अगर समझ में आ जाएगा हमें, तो फिर हमें दिक्कत नहीं आएगी। वो समझ में नहीं आता ना, इसलिए हमें प्रॉब्लम होता है। उनका उनका तबीयत ठीक है या फिर वो किसी काम में बिजी है, कोई काम में इन्वॉल्व है, तो वो मना करेंगे, या तो फिर पैसे की कोई दिक्कत होगी या कुछ भी होगा, कहने का मतलब। तो कुछ सरकमस्टेंस उनके फेवर में नहीं होगा, तब जाके वो मना करेंगे, उसके अलावा कभी मना नहीं करेंगे वो। और दूसरा, वो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, कि अगर आपने कभी खाया है और आपको दिक्कत आती है तबीयत में, तो उनको वो काउंटिंग रहती है कि अभी ये खाएंगे तो उसको ये तकलीफ होती है, तो उसके वजह से भी वो अवॉइड करते हैं कि भाई अभी मत खाओ, ये करो वो करो। तो उनका व्यू पॉइंट हमें समझना है, किस पर्पज से वो मना कर रहे हैं। वो समझ में आ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन हमें हमें क्या, हमें हमें हमारा ही दिखाई देता है, खाना है हाँ बस खाना है करके। तो हमें वो भी समझना है कि अगर नहीं मिलता है हमें, आज बताया और हमें नहीं मिला, तो क्यों नहीं मिला, वो हमें समझना है। दादा भगवान क्या बताते थे कि अगर आपकी पुण्य इतनी है, तो आप मन में सोचोगे ना, वो चीज आज सामने आके खड़ी हो जाएगी। हाँ। लेकिन उसके साथ पुण्य का साथ चाहिए उसमें। हम्म। तो क्या, हमने सभी को दुख दिए, सभी के लिए हमने अंतराय डाले हुए हैं, इसलिए ऐसा होता है। ये साइंटिफिक बात भी हमें साथ में समझना है। पापा का व्यू पॉइंट भी समझना है और फिर साइंटिफिक भी बात समझना है कि हमें क्यों सामने से मना क्यों आया, वो भी हमें समझना है। कि जाने अनजाने में हमने किसी के कभी भी इसके प्रति अंतराय किए हुए हैं, तो वो हमारे सामने आते हैं, या तो फिर हमारी पुण्य ही नहीं है उतनी, तब जाके हमारे वो हाथ में नहीं आता है वो चीज। हाँ तो समझ में आया? काफी सारे एविडेंस भी होते हैं नहीं मिलने के पीछे, और हमें सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती है कि पापा ने मना कर दिया। हाँ मोनिका, क्या 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 बताया बताया आपको, आपको, तो तो सोचने सोचने का का होता होता है। है। तो तो संतोषा संतोष काका काका क्या क्या बोला? बोला? आपको आपको सोचने सोचने का का कि कि व्यू व्यू पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ पापा, पापा, जल्दी 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 बोलो। बोलो। मुझे पापा का व्यू पॉइंट समझना है, और इसी में एक चीज में खड़ा नहीं होना है कि पापा ने मना कर दिया इसलिए। हमें उनका जो संजोग है वो भी समझना है, और पापा कुछ चीजों के लिए अवॉइड भी करते हैं वो भी समझना है। और नहीं, तो नहीं, पर क्या क्या और क्या क्या व्यू व्यू पॉइंट पॉइंट पापा का पापा का समझने समझने का है? का है? पापा का काम हो सकता है, या फिर वो काम लेटली खत्म भी हो सकता है, और वो आपका आपका बाहर हेल्थ भी हेल्थ जा देखने देखने का सकते का है, है, पैसा का पैसा का देखने देखने का का है, है, और टाइम टाइम देखने देखने का का है, है, पापा पापा का का हेल्थ हेल्थ देखने देखने का का है। है। और और आपको आपको सब सब बताया बताया ना, ना, तो तो ये ये तो तो ये ये सब सब थिंक थिंक करने का करने का बाद, बाद, ठीक है ठीक है सब। सब। तो चलो, चलो, ओके। ओके। रजनी दादा, आपकी वो अभी आवाज नहीं आ रही थी, रिपीट हो रही थी, तो इस कारण
आपकी आवाज सुनाई नहीं देती थी। अच्छा अच्छा अभी भी नहीं आती है? दादा नहीं आप પેલું એકો પડે છે. अच्छा 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 ओके 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 अभी अभी मैं मैं दूसरा दूसरा कंप्यूटर कंप्यूटर बंद बंद करने करने वाला वाला। ओके ओके जय जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद। ओके ओके कंटिन्यू ये सोचो संतोष संतोष काका ने काका ने बोला बोला ने ने नोट नोट करो करो पापा पापा क्या क्या करता है करता है नहीं नहीं करता है करता है ओके ओके जय जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दिव्याबेन. सच्चिदानंद।